Good morning, students. I hope you all are fine at your home. So now we are continuing exercise 1.5 with the R.D. Sharma. Now question number 5 is first one is 3 by 2 multiply with 1 by 6 plus 5 by 3 multiply with 7 by 2 minus 13 by 8 multiply with 4 by 3. Okay? So here first we get the simplification of the bracket terms, and in the bracket the all terms are in the multiplication relation. Okay? So starting with the simplify of bracket, multiplication of rational number like a 3 multiply with 1 upon 2 multiply with 6 plus 5 multiply with 7 upon 3 multiply with 2 minus 13 multiply with 4 upon 8 multiply with 3. So that here 3 2s are 6, 3 2s are 6. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा 1 अपॉन 2 2s are 4. द फर्स्ट टर्म इज 1 by 4 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो वी कैन पुट डायरेक्टली वैल्यू लाइक 7 5 are 35 अपॉन 3 2s are 6 माइनस here 4 2s are 8, 4 2s are 8. So यहाँ पे 13 1s are 13 upon 2 3s are 6. So now we get the simple term of the addition and subtraction. So we know that what is the LCM of 6 and 4. So 6 and 4 का LCM मिलेगा मुझे 12. 6 2s are 12 and 4 3s are 12. So LCM of 4 and 6 is 12 because of 12 is the least or smallest common multiple for the 6 and 4. So now we are getting the 12 as a denominator of the all terms. So here the 1 upon 4 multiply with 3 multiply with 3 plus 35 upon 6 6 multiply with 2 35 multiply with 2, then minus 13 upon 6 multiply with 2 multiply with 2. So now we are get 3 1s are 3 upon 12 plus 35 2s are 70 upon 12. इसको मैंने ब्रैकेट में ले लूँगा, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से. सो ना माइनस 13 2s are 26 upon 12. यहाँ पे पहले मैं एडिशन करूँगा तो then we can get the 70 plus 3, it become a 73 upon 12 minus 26 upon 12. Now 73 minus 26 upon 12, then we can get 13 minus 6, it become a 7, and 6 minus 4 become a 4. 47 upon 12 is our answer. Yes or not? Because of 73 minus 26 करेंगे तो 3 से माइनस 6 नहीं कट होगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 13 में से 6 माइनस करोगे तो इट बिकम अ 7, और यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 माइनस 2 बिकम अ 4. (73) 26 plus 7, yes, right. Okay, now next question is number
number 3. Number 3. And number 3 is 13/9 multiply with minus 15/2 bracket close plus 7/3 multiply with 8/5 plus 3/5 मल्टीप्लाई विथ 1/2। यहाँ पे तीनों टर्म वैसे तो पॉजिटिव ही है, ये और ये, बट अंदर वाला जो टर्म है वो एक नेगेटिव है। तो लेट्स सी इट 13 मल्टीप्लाई विथ माइनस 15 अपॉन 9 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विथ 2। अब यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सो यहाँ से 3 3 कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे -5। सो 13 मल्टीप्लाई विथ 5, 13 multiply with 5 it becomes 65, but here minus sign, so this one is plus and this one is minus, so multiplication of sign according to the plus minus minus 65 upon 3 2 is 6 plus, now यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन हो रहा नहीं है, so 7 8 ज़ा 56 upon 3 5 ज़ा 15 and plus 3 1 ज़ा 3 upon 5 2 ज़ा 10। अब now in the denominator of 6 50 and 10 का LCM मुझे मिलेगा 30। कितना मिलेगा? 30, because of 6 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 and 10 3 ज़ा 30, so 30 is the lowest common multiple for these three all term। so now minus 65 upon 6 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, कि LCM of 6 15 and 10 is 30, क्योंकि यहाँ पे देख के ही मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मालूम पड़ेगा कि इन तीनों का एलसीएम हमें 30 मिल रहा है, ठीक है। तो -65 अपॉन 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 56 अपॉन 50 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। सो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 कैरी अप टू 5 6 5 ज़ा 30 30 प्लस 2 32 3 25 बट माइनस अपॉन 30 प्लस 56 मल्टीप्लाई विथ 2 it become a 112 upon 30 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 30। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, -325 अपॉन 30 प्लस 112 प्लस 9 अपॉन 30। सो -325 अपॉन 30 प्लस इट बिकम 121 अपॉन 30। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ऑपोजिट साइन वी कैन गेट द सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू एंड साइन विल बी टेकन एज पर द बिगर नंबर। सो हियर -325 plus 121 divided by 30. So now we know that 5 minus 1 4,
2 minus 2 0, 3 minus 1 2. It become minus 204 upon 30. बट अब देख सकते हैं यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 4 है, दोनों नंबर 2 से डिवाइजेबल है। सो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए इस एग्जांपल का, तो मैं इसको कट करूँगा 102 से और इसको 15 से। 102 मल्टीप्लाई विथ 2, इट बिकम 204 एंड 15 2 is 30. Then final answer is minus 102 upon 50. यहाँ 2 plus 1 3, 102 3 से भी डिवाइजेबल होगा। देखो क्योंकि एज पर द डिविजिबिलिटी टेस्ट the sum of the all digit is divisible by 3, then all number is divisible by 3. So if we check 102 divided by 3, 3 3s are 9, 1 ऊपर से लिया 2, 3 4s are 12. So ये नंबर भी 34 multiply with 3 and 5 multiply with 3, 3 3 again cut, then answer will be 34 minus 34 upon 5. It's a complete standard number, क्योंकि अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर न निकलता हो तो इट्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. So in the exercise 1.5, in the question number 5, it have 4 examples, but we have done 2 examples from it. So write down the 2 example and बाकी के जो 2 example है आपको वो सेल्फ प्रैक्टिस में होमवर्क में करना है, ठीक है। So write down these 2 example in your book. So after the completing addition and subtraction of rational number, now we are going to learn about the multiplication of rational number. We all know that what is the multiplication, how to get the multiplication of rational number. Whenever the two terms are multiplying the rational number, the multiplication of numerator with the numerator and multiplication of denominator with denominator. It is a simple method to get the product of any two rational number, but we have learned about a smaller property about the multiplication of rational number. The first one is the closure property. Closure property का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऑपरेशन किन्हीं दो रेशनल नंबर पे करें तो उसका जो प्रोडक्ट, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। कोई दो नंबर, आप रेशनल नंबर कोई दो नंबर लिए और उस पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा, अगर वो आंसर भी रेशनल नंबर निकला तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 3/2 मल्टीप्लाई विथ 5/4, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें मल्टीप्लिकेशन तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 4, 15/8, तो 15/8 इज ऑल्सो बी द रेशनल नंबर। अगर उसके जगह पे कोई वोल नंबर भी आता, इंटीजर भी आता, तो इंटीजर भी वन काइंड ऑफ द रेशनल नंबर है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा आंसर आता कि भाई 15 मल्टीप्लाई विथ 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहाँ पे 2 4 × 8 हो जाता, 3 5 × 15 हो जाता, आंसर मेरा 20 आता। तो 20 ऑल्सो भी द रेशनल नंबर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, तो 20 भी रेशनल नंबर के सेट में ही आता है, इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ कम्यूटेटिविटी, हमें मालूम है कि A/B क्रॉस C/D कोई नंबर है तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि C/D क्रॉस A प्लस C/D क्रॉस A प्लस B, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉपर्टी बाकी नहीं रह जाती ना, वो हमें देखना है नहीं, ठीक है। एक उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई
2/3 मल्टीप्लाई विथ 4/5। तो हम इस नंबर को इस तरह से लिखें या फिर 4/5 मल्टीप्लाई विथ 2/3, दोनों सेम ही कहलाएगा, है ना। आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 करो या 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 करो, दोनों आंसर तो 8 ही आएंगे। 3 5 ज़ा 15 करो या 5 3 ज़ा 15 करो, आंसर दोनों का सेम ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ होती है। एसोसिएटिविटी हमें मालूम है कि भाई A/B क्रॉस C/D क्रॉस P/Q, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स है इस तरह से। तो आप इनको किन्हीं दो में पहले कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब A/B क्रॉस C/D, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बाद में जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका P/Q के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो आप A/B एज इट इज़ रखिए, मल्टीप्लाई विथ पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, C मल्टीप्लाई विथ P/D मल्टीप्लाई विथ Q, तो भी चलेगा। ये हो गई हमारे एसोसिएटिविटी, ठीक है। कोई भी दो नंबर का पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में तीसरे नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें मालूम है कि अगर हम A/B के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें वही मिलेगा, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ हो -A/B क्रॉस 1, देन वी कैन गेट द -A/B विथ साइन, कोई चेंज होगा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम A/B कोई भी रेशनल नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर हो, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, आंसर हमेरा 0 ही मिलेगा, ठीक है। एक रेसिप्रोकल की बात आई तो यहाँ पे आप एक और भी बात छोटी सी लिख लीजिए कि भाई A/B के ऊपर नेगेटिव पावर हो तो अगर आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो B/A लिख सकते हो, B/A, ठीक है। याद रखना, कोई भी रेशनल नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर हो, माइनस पावर हो, उसको आप प्लस करना चाहते हो तो यहाँ का जो ब्रैकेट के अंदर का जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। और A/B कि -1 और उसके ऊपर अगर माइनस हो तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 बार माइनस आई तो अकॉर्डिंग टू द पावर एंड एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ द पावर, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमेरा वही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी नोट थी, रिमार्क्स, और ये थी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इतनी चीज़ आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक में नोट कर दीजिए, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई, ओके। नाउ वी वांट टू प्रूव की बात अलग होती है और वेरीफाई की बात अलग होती है। Whenever it asks us or tell us prove that, then we must be prove the left hand side is equal to right hand side. जब भी क्वेश्चन में ऐसे बताया हो कि prove that, then we must be prove left hand side is equal to right hand side. But whenever it asks that कि check और verify, तो right hand side और left hand side equal to हो, it's not compulsory. वेरीफाई करने का मतलब हमें चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, और प्रूव का मतलब कि है ही, राइट ही है, सिर्फ हमें प्रूव करना है किस तरह से राइट है।
ठीक है। तो ये बात, दो बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको प्रूव दैट बताया गया हो तब आपको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लाना ही लाना है, और जब आपको वेरीफाई दैट, चेक दैट बताया गया हो तब आपको सिर्फ चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दैट्स ऑल। सो इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज verify the property x cross y is equal to y cross x by taking, यहाँ पे मैं भी दो करवाऊंगा। नंबर 1, x is equal to minus 1/3 and y is equal to 2/7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चेक करना है कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x क्रॉस y, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 क्रॉस 2/7, माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 2/3 मल्टीप्लाई विथ 7, 1 2 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस अपॉन 7 3 ज़ा 21। नाउ राइट हैंड साइड y cross x, so 2/7 multiply with minus 1/3, 2 multiply with minus 1/7 multiply with 3, so it become minus 2/7 3 ज़ा 21, therefore left hand side is equal to right hand side। हो गया प्रूफ, ठीक है। Now third one is yes, सेकंड वाला करवाऊंगा, थर्ड वाला तो आपसे आराम से हो जाएगा। x is equal to minus 3/5 and y is equal to minus 11/13. So left hand side is equal to x cross y minus 3/5 multiply with minus 11/13. So minus 3 multiply with minus 11/5 multiply with 13. 11 3 ज़ा 33 minus minus plus and 13 5 ज़ा 65. Now right hand side y cross x, then y is minus 11/30 multiply with minus 3/5, minus 11 multiply with minus 3/13 multiply with 5, so it get a 33 minus minus plus upon 65, therefore left hand side is equal to right hand side, है ना। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स है, बाकी के दो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये दोनों लिख लीजिए अभी। Now question number 2 is verify the property x cross y cross z is equal to x cross y cross z। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे चेक करनी है। द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू माइनस 7/3, y इज इक्वल टू 12/5 एंड z इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। So first we take the left hand side x cross y cross z. So we have substitute the value of x, y and z in the left hand side. Minus 7/3 multiply with in the bracket 12/5 multiply 4/9. So minus 7/3 as it is, 12 multiply with 4/5 multiply with 9. Now we know that 3 3s are 9, 3 4s are 12. So minus
7/3 multiply with 4 4s are 16 upon 15. Now minus 7 multiply with 16 and 3 multiply with 15. So here 7 6 are 42, carry up 4, 7 1s are 7, plus 4 11, 1 1 2, but minus upon 15 2s are 30. ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले तो भी चलेगा और ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा. नाउ राइट हैंड साइड, व्हाट इज द राइट हैंड साइड? x क्रॉस y क्रॉस z. सो माइनस 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. So here minus 7 multiply with 12 upon 3 multiply with 5, 4 upon 9. Now 12 7s are 84, but plus minus minus upon 3 5s are 15, multiply with 4 upon 9. Now minus 84 multiply with 4 upon 15 multiply with 9. Okay, so here यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कट होगा शायद, पर अभी कर लेते हैं. 84 8 plus 4 12, so it become divided by 3 3 2s are 6, 2 ऊपर से आया 8, 3 8s are 20, सॉरी 6 3s are 18, 3 2s are 6, 8 minus 2 6, ऊपर से आया 4, 8 नहीं है क्या, 3 8s are 24, so 28. So here 28 multiply with 3 and 3 3s are 9, again 3 3 cut. Now और भी अब 28 है तो ये क्या हो गया, 8 3 ऐसे 15 ऐसे 7 नहीं पर 4 7s are, let's check it. Minus 28 multiply with 4 upon 15 multiply with 3. Okay, 28 3s are 84 and 4 as it is, 9 as it is, 3 5s are 15 as it is. So here 9 3s are 27 नहीं होगा, तो यहाँ पे 28 multiply with 4 4 8s are 32, carry up 3, 4 2s are 8, 9 10 and 11, 1 1 2. और यहाँ पे हमने गलती की है, it's not a 15 3s are 45, not a 30. So minus 1 1 2 upon 45. So we can take the left hand side is equal to right hand side. ठीक है, इसी तरह से इसके अच्छे से और 3 क्वेश्चन है. तो आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करना है. इसके अलावा जो 3 ऐसे सिंपल एग्जांपल है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ही है सिंपल, वो आपको करने हैं. ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 4 5 6 कर लेंगे, फिर एक एक्सरसाइज बचेगी. आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक करना है.